mechanical plus electronics, right? Like machineries or MEMS, or it deals with the see little very small or micro scale equipments like your phone, right? So, and again in 2019 we introduced two more programs, master program. Sir, I also want to mention that last year in 2024, National PG also conducted basic aptitude program of 7 days, the same sponsored by AICTE, right? So this AKTU campus, this CAS campus, will be the best option for us, and thank you so much for giving permission to us for visiting this campus, so that the participant can learn that how the technology can be used to channelize the energy. We can maintain, we can use this energy in an institute or in any business, so that can be useful for classroom learning or practical learning or any other possible way of life. This is the cyber security lab. बोल दो मुझे यार, बोल दे ना, हाँ बोल दो। So basically, this is the cyber security lab, which is used for the simulation of the cyber security establishment, which are required electricity for the whole day, but due to the shortage of electricity, we are not able to supply the electricity to those nodes. So, sir, this is the Google no? सर मैम, ये हमारे पास जो है ये रोबोटिक्स लैब है। इसमें हमारे पास जो रोबोट्स रखे हुए जर्मन कंपनी, एंड दिस इज द वेयर हाउस रोबोट। ऑल दिस रोबोट्स आर एक्चुअली आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट्स। आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट्स मीन ये हमारे आर्म जो ह्यूमन आर्म्स होते हैं उनको ये रेप्लिकेट करता है। हमारे ह्यूमन आर्म्स में जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहे हैं, ठीक है, टोटल हमारे ह्यूमन आर्म्स में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। सेम ये भी इस चीज़ को रेप्लिकेट कर रहा है। तो हमारे पास रिस्ट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, एल्बो पे 1। This sophisticated area and instrument, BTech student doesn't. They are not allowed for the this higher end project. So यहाँ पे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई है यहाँ पे बताएंगे ज़रा। अभी मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। नैनो वेरी स्मॉलर वर्जन 10⁻⁹, ठीक है, जिसको हम बहुत नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो सारी जो हम आजकल फ़ोन ये सारी चीज़ें देखी होंगी इन रिसर्च आर्टिकल, वो सारी चीज़ें कैसे बनती है हायर प्रेशर पे, राइट? तो वो उस तरह के रिएक्टर्स वगैरह रखें सो दैट वी कैन जस्ट वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स। और उसका हम लोग डिफरेंट एरिया में, जैसे यहाँ पे पीएचडी करके गए वो ट्रैवलॉजी डिपार्टमेंट मतलब एप्लीकेशंस में उन्होंने किया। कुछ बच्चे हैं जो गैस सेंसर्स में किए कि CO2 और ये SO2 के पॉल्यूशन के लिए, प्रेशर सेंसर में बच्चों ने काम किया। तो इस तरीके से सबके प्रोजेक्ट एरिया अलग होते हैं, उसके हिसाब से अपने स्पेसिफिकेशंस लेके बच्चे काम करते हैं। सो बेसिक प्रिपरेशन इज हियर एंड देन आफ्टर वी जस्ट गो टू दैट फैब्रिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन में। तो कैरेक्टराइजेशन में बेसिकली हम लोग के पास FEACM है एंड AFM, FTIR, UV-Vis एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वगैरह तो रहेगा ही, विल दैट्स अ प्राइमरी थिंग, एंड PG बेसिकली STA स्टिमुलेशन के साथ है वो, तो STA। So this kind of only XRD we are not having right now, so for the primer, but I'll just take you right for the
the fabrication, so that you can have an idea of what kind of instrument we are using. आप लोग बैठ जाइए, हम लोग वेट करेंगे दूसरे बैच का, दूसरा बैच आने के साथ में And these are the systems, basic systems used for the purpose of you can say utilizing this main server. Okay, these systems are equipped with 32 GB RAM and a NVIDIA DGX NVIDIA RTX 3050. Okay, these two are the DGX platforms which are powered by the NVIDIA DGX. Okay, these two are DGX platforms which have a computation of 0.5 petaflops each. Okay, so combining they get a computation of 1 petaflops. So petaflops, you can see that is the 5 into 10 to the power 15 floating point operations per second. That is a very high computation. Okay, and this is the main server. This is also backed by the NVIDIA GPUs. It has a computation of 4 petaflops. That is the 4 into 10 to the power 15 floating. कि वो 22 लाख मतलब आगे चल करके कैसे मतलब उसका यूटिलाइजेशन होगा, हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई भी संस्था होती है पहले उसमें पैसा लगाने से पहले भी डरेगी, जाहिर सी बात है। जी सर। इसका क्या मतलब कुछ है आपके पास जवाब? सर ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली टेक में हूँ। Sir, what are the basic requirement to establish a AI research center in a college or university, according to you? सर अभी रिसेंटली मथुरा से एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर मुझसे इसी बारे में आए थे लैब स्टैब्लिश के लिए। तो सर मैंने उनको स्पेसिफिकेशंस बताए थे, बट सर स्पेसिफिकेशंस डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट सर, कि वो अपनी रिसर्च को किस एक्सटेंट तक ले जाना चाहते हैं। Normal standard AI. सर स्टैंडर्ड AI आपको सिर्फ बेसिक पब्लिकेशन चाहिए तो सर उनके लिए सिस्टम्स इनफ होते हैं। जैसे 32 GB रैम वाले हैं, ये सिस्टम आपको सर एकदम बेसिक वाली जो मतलब लर्निंग करानी है उनके लिए इनफ होते हैं इसमें। लेकिन हाँ सर थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे आपको एक एक मॉडल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करें, क्या वो फिजिबल है कि नहीं, रियल हो वो प्रोटोटाइपिंग हो। इंक्यूबेशन सेंटर पे लिखना चलेगा।